Hello students, here we are starting lesson number 11. Name of the lesson is circle. Almost you are much familiar with this circle now. Okay, let us recall point is there, whatever we have learned in lower classes. Okay, information about it. Here is the diagram. Here the circle is shown. Okay, with the center point O. Okay, here the points are shown A, B, C, D, E, F. All these points are shown. Okay. The question is asked, identify the radii, chords and diameters in the circle alongside and write their names in the table below. Okay. So how many radii are there? Radii means it is the plural of radius. Okay. So how many radii are there? Radii OA, then OB, then which starts from center, then OC and OF, OC and OF. These are the four radii. Okay, then chords. What is the meaning of chord? Chord means the segment which touches 2 points of the circle. Okay, but does not pass through the center. Okay, जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं. ओके, तो डायमीटर कितने हैं? ओके, डायमीटर ए बी, दिस, देन डायमीटर सी एफ. ओके, only 2 are passing through the center. Okay, chords, how many are there? 2 are there chords. Chord CE and chord AD. So, in the adjoining figure, in the given figure, how many? 4 radii are there, 2 chords are there and 2 diameters are there. Alright? Okay, let us move ahead. Circumference of a circle. Okay, circle का circumference क्या होता है? ओके, अब तक हम लोगों को ये मालूम है, रेडियस मालूम हो गया है, chords मालूम है, diameters मालूम है. ओके, let us learn the new concept, that is circumference of a circle. Activity is given. Place a cylindrical bottle on a paper and trace the outline of its base. Use a thread to measure the circumference of the circle. क्या करना है उसके लिए? सिंपल तरीका एक दिया है. बॉटल ले लो, ओके, नोटबुक पर पेपर पर रखो. ओके, उसका जो बेस होता है उसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल उसकी आउटलाइन बनाओ. ओके, और उसका जो लेंथ आएगी, okay, that is nothing but the circumference of that bottle. One more activity is given. Measure the circumference of a bangle with the help of thread. Okay, एक बैंगल ले लो. Okay, उसको जैसी बैंगल है वैसा थ्रेड लगाओ. Okay, and the length of that thread, measure it. Okay, that length is nothing but the circumference of that bangle. One more activity. Measure the circumference of any cylindrical object using a thread. Okay, ये सबसे सिंपल तरीका है circumference measure करने का. Means through activity I am saying. Okay, तो एक्टिविटी में अब ये देखो, it is a bottle. Okay, ये बॉटल को एक थ्रेड लगा लो. Okay, यहां तक आएगा दोनों साइड से. Okay, later on remove it. Okay, उसको निकालो और स्केल पर रखो. ओके, देखो उसकी लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ है उतना क्या हो गया उसका सर्कमफरेंस. मूविंग अहेड विथ लेटेस्ट लर्न पॉइंट. ओके, अब क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफरेंस एंड डायमीटर. ओके, सर्कमफरेंस और डायमीटर. अब सर्कल का रेडियस डायमीटर हम लोगों को मालूम है. ओके, तो डायमीटर और सर्कमफरेंस का कुछ कनेक्शन है या नहीं है? अगर है तो कैसा है? Here activity is given. Measure the circumference and diameter of the objects given below and enter the ratio of the circumference to its diameter in the table. Okay. So here serial number, object, उसका circumference, उसका diameter, उसका ratio. किसका ratio? Circumference upon diameter, यानी circumference divided by diameter. Okay. इसका ratio लेना है. Okay. या नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज गिवन बैंगल. ओके, बैंगल का जो सर्कमफरेंस मेजर किया था
ओके, वो सरकमफरेंस कितना मिला? 19 सेंटीमीटर। ओके, उसका डायमीटर मेजर किया, डायमीटर मिला 6 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस इज 19 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, उसका रेशो क्या मिलता है? रेशो मीन्स सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफरेंस कितना है? 19 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर मीन्स 19 डिवाइडेड बाय 6। उसका रेशो मिलता है 3.16। 3.16। ओके, एट द सेम टाइम 2 more objects are given, circular dish and lid of a jar. Okay, one circular dish was there with me, even lid of jar was there with me. Okay, ये बड़ा था थोड़ा सा, ओके, और ये सर्कुलर डिश थी मेरे पास। तो मैंने उसका सरकमफरेंस मेजर किया, मुझे सरकमफरेंस मिला 31 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर मैंने मेजर किया, मुझे डायमीटर मिला 10 सेंटीमीटर। ओके, when I take the ratio of the circumference and diameter, so 31 upon 10, I will get 3.1. Ratio I get 3.1. Okay, इसको यूनिट नहीं है कुछ, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, इसको यूनिट नहीं है। देन लीड ऑफ अ जार, जो मुझे जो ढक्कन मिला था थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर था। ओके, तो मैंने उसका सरकमफरेंस मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ओके, उसको पूरे साइड से थ्रेड लगाया। ओके, और वो स्केल पर मैंने मेजर किया। आई गॉट द नंबर 38। ओके, थोड़ा सा इधर उधर होगा। ओके, लेकिन एक्चुअल 38 तो नहीं, लेकिन 38 के आसपास मिला मुझे। ओके, व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ दिस 38 अपॉन 12, ओके, सो व्हाट आंसर वी गेट? 12 3 are 36.2 remainder. We get value 3.16. Alright, here 3.1, here 3.16, here 3.16. Okay, देखते हैं क्या है ये। Okay, but remember that these values are very important. Okay, the next point is there, examine the ratio of the circumference to the diameter. What do you see? Okay, अगर हम लोग ये circumference और diameter का जब रेशियो ऑब्जर्व करते हैं तो ये 3.16 आता है, 3.1 आता है, 3.16 आता है, कभी 3.15 आएगा, कभी 3.14 आएगा, कभी 3.12 आएगा, कुछ तो भी। लेकिन ये ऐसा ही क्यों आता है? ओके, सरकमफरेंस और डायमीटर का अगर रेशियो लिया तो ये ऐसे ही क्यों आता है? अगर आता है तो क्या है ये? ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड वैल्यू। लेट अस सी ऑन नेक्स्ट पेज। इट्स एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। द रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल में, ओके, सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो, ओके, इज लिटिल ओवर 3। ओके, 3 से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है। ओके, 3.3 से लिटिल ओवर 3 यानी 3 पॉइंट कुछ तो भी मिलता है। ओके, लेकिन 3 से कम नहीं। ओके, 4 तक तो जाता ही नहीं। दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पाई, PIE, पाई। ओके, great mathematicians have proved through hard work that this number is not a rational number. Okay, बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कैलकुलेशंस किए गए, एंड आफ्टर दैट इट इज प्रूव्ड दैट इट इज नॉट अ rational number. Okay, in practice the value of pi is taken to be 22/7. Okay, अगर हम लोगों को अगर पाई की वैल्यू चाहिए, okay, then for the purpose of calculation the value in the numerator denominator form it is taken as 22/7, और अगर डेसिमल फ्रैक्शन में चाहिए तो then it is 3.14. okay, इसका डिवीजन करो, you will get answer 3.14. If the value of pi has not been given in a problem, it is taken to be 22/7. okay, अगर कोई एग्जाम्पल दिया है सॉल्व करने के लिए, उसमें अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है, ओके, तो उसको हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? 22/7, नहीं तो 3.14 डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल।
ओके, वो एग्जाम्पल का सिचुएशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में से कौन सा भी लिया तो चलता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 22/7 ले लो, नहीं तो 3.14 ले लो, सेम वैल्यू इट इज। नेक्स्ट इज इफ रेडियस इज आर, डायमीटर डी एंड सरकमफरेंस सी। ओके, अगर रेडियस का शॉर्ट फॉर्म अगर आर है, डायमीटर का डी है, यानी जनरली ये सारे के सारे लोग ये यूज करते हैं। ओके, स्मॉल आर मीन्स रेडियस, स्मॉल डी मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल, and small c means circumference of the circle. Okay, then therefore circumference divided by diameter c upon d is equal to pi. What is this pi? हमने वो पहले टेबल में देखा था, देखो। ओके, circumference और diameter की जो आंसर आता है वो एक कांस्टेंट रेशियो आता है, वो कांस्टेंट रेशियो कौन सा होता है? पाई। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो c अपॉन d, here what we get, c upon d is equal to पाई। ओके, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू, नाउ दिस d इज एट डिनोमिनेटर्स प्लेस, अगर इसको अगर दूसरी तरफ लिया तो इट बिकम्स पाई डी, c इज इक्वल टू पाई डी। दिस इज वन मोर फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस ऑल्सो, c अपॉन d इज इक्वल टू पाई और c इज इक्वल टू पाई डी। ओके, इसमें चेंजेस करके मिलता है। ओके, नहीं तो अब देखो डी का मतलब क्या है? डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या है? इज इक्वल टू, डायमीटर का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई, देखो 2 पाई आर। ओके, व्हाट इज c? c इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी हमें यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया है। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? c इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहां पर भी मिला है सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर इज गिवन और लेंथ ऑफ रेडियस इज गिवन, तो फ्रॉम दैट हाउ टू फाइंड आउट द circumference, then this formula we can use. Okay, this is, here is the formula, c is equal to 2 pi r और c is equal to pi d। ये दोनों में से कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? व्हेन लेंथ ऑफ द डायमीटर इज गिवन। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ रेडियस इज गिवन, राइट। ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन हियर। देन आफ्टर दैट सॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन। यहां पर एक सॉर्ट एग्जांपल है, यहां पर एक सॉर्ट एग्जांपल है। यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक, गो थ्रू द सॉर्ट एग्जांपल्स। हियर वन मोर सॉर्ट एग्जांपल इज गिवन हियर डाउन। ओके, नीचे भी यहां पर दिया है, नेक्स्ट पेज पर भी सॉर्ट एग्जांपल दिया है। ओके, एंड देन डायरेक्टली वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 42। ओके, in practice set number 42 total 4 examples are there. Question number 1 2 3 4, question number 1 में 4 example है। all these examples will be explained here. Let me explain here only some of the examples. Now if radius is 7 centimeter, तो diameter double होता है, तो 14 centimeter. Okay, circumference, तो circumference कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज करो, इज इक्वल टू 2 पाई आर मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है? 7 7 कैंसल्स ईच अदर, आंसर इज 44। ओके, 44 सेंटीमीटर। लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जांपल। Here in this example, length of the diameter is given 28 centimeter. अगर diameter 28 centimeter है तो रेडियस क्या होता है? उसका हाफ होता है, तो नेचुरली द लेंथ ऑफ द रेडियस इज 14 centimeter. Right? Now, with the help of this formula, either 2 pi r, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है pi d. Okay. Circumference is equal to pi d. Now I will use this formula, pi d. Okay, we can find out the value of circumference. Okay, अब diameter use करते हैं, is equal to 22/7 multiplied by 28. 7 1 7, 7 4 28 is equal to 22 multiplied by 4,
88 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब देखो रेडियस डबल हो गया, डायमीटर डबल हो गया, सर्कमफरेंस भी डबल हो गया। ओके, नाउ हियर in this third and fourth example, circumference is given. We have to find out the value of radius and diameter. Radius and diameter. Okay, example number 3. Value is given. Circumference is equal to 616 centimeter. Okay, from this we have to find out length of diameter and radius. Okay, so we know the formula C is equal to pi d. Okay, circumference is given 616 is equal to 22 upon 7 multiplied by d. Right? क्या किया है, मैंने C की जगह पर circumference की वैल्यू लिखी है, पाई की जगह पर 22 upon 7 लिखा है and multiplied by d. Okay, therefore 616. Okay, ये 22 upon 7 यहां पर लेना है। अगर 22 upon 7 अगर इधर लेते हैं तो 7 जाता है न्यूमरेटर की प्लेस पर एंड ये 22 जाता है डिनोमिनेटर की प्लेस पर, इज इक्वल टू डी। राइट? ओके, सो देयरफॉर 22 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मीन्स अगर ये डिवीजन करते हैं 616 डिवाइडेड बाय 22, आंसर यू विल गेट 28 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू डी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7 8 56 196 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर 196 सेंटीमीटर है, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2, आधा होता है 196 अपॉन 2 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना मिला? 98 सेंटीमीटर। राइट? नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। व्हाट इज गिवन? सर्कमफरेंस इज गिवन 72.6 सेंटीमीटर। डेसिमल में दिया है, डरने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं अगर अपना फॉर्मूला अपने साथ है। वी नो द फॉर्मूला C इज इक्वल टू पाई, यहां पर पाई डी यूज किया है। ओके, यहां पर 2 पाई आर यूज करते हैं, 2 पाई आर, अलग अलग फॉर्मूला, यानी आप लोगों को दोनों भी फॉर्मूला, ये भी सर्कमफरेंस का ही है, ये भी सर्कमफरेंस का है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कमफरेंस गिवन? 72.6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मीन्स व्हाट? 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर। ओके, सो देयरफॉर 72.6 यहां पर सिर्फ आर बचना चाहिए, तो ये 7, ये 2, 22 यहां पर लेने, तो 7 डिनोमिनेटर, तो इधर आने के बाद न्यूमरेटर। ओके, ये दोनों न्यूमरेटर, तो इधर आने के बाद डिनोमिनेटर। ओके, सो देयरफॉर अब इनका करो डिवीजन, 2 से डिवाइड करते हैं पहला। ओके, दोनों को 2 से अगर डिवाइड किया तो इज इक्वल टू आर। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, गड़बड़ यानी गलत कुछ नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा टाइम कैंसिल करते हैं, अब इसका सोचते हैं। ओके, 72.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू आर। ओके, ठीक है। अगर इसको 22 से, जो मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर 22 से डिवाइड किया इसको, तो 22 3 जा 66। ओके, रिमाइंडर 6 पॉइंट एंड 22 3 जा 66। ओके, तो अगर 7, ये दोनों को अगर 22 से डिवाइड किया तो यहां पर आंसर मिलता है 1, यहां पर आंसर मिलता है 3.3। सो देयरफॉर व्हाट इज रिमेनिंग? आर इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू
23.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। ओके, क्या मिला? ये मिला हमें रेडियस। व्हाट वी गॉट? रेडियस। ओके, सो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r is equal to 2 multiplied by 11.5 centimeter is equal to 23 centimeter. Diameter is 23 centimeter. Correct. Let us move to example number 2. Example number 2 is, if the circumference of a circle is 176 centimeter, find its radius. ओके, अगर सरकमफेरेंस 176 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस फाइंड आउट करो। सिंपल है, यहां पर हमने किया था। व्हाट इज गिवन? सरकमफेरेंस इज गिवन 176 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रेडियस। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, जिसमें आर है वो फॉर्मूला लेते हैं। सो देयरफॉर सरकमफेरेंस इज गिवन 176 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7। ये क्या है? पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। ओके, देयरफॉर 176 ये डिवाइडेड बाय 7, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये दोनों न्यूमरेटर तो ये आएंगे इधर डिनोमिनेटर की प्लेस पर, इज इक्वल टू आर। ओके, अब दोनों को 22 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये 22 के टेबल में आता है 176, ये ओके, अब दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो 1, इसको 2 से डिवाइड किया तो 4। देयरफॉर व्हाट वैल्यू वी गॉट? r इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। देयरफॉर r इज इक्वल टू 28 एंड यूनिट इज, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आंसर नीचे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड इट्स रेडियस। सो देयरफॉर रेडियस is 28 centimeter. Right? Let us move to third example. The radius of a circular garden is 56 centimeter. सर्कुलर गार्डन, यानी सर्कुलर गार्डन अगर ध्यान में नहीं रखना है तो समझो सर्कल समझो। ओके, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है? 56 सेंटीमीटर। Then what would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? Okay, अब ये जो सर्कुलर गार्डन है, यहां पर मैं एक छोटी सी फिगर निकालता हूं, सर्कुलर गार्डन है। ओके, तो इसका रेडियस कितना है? 56 मीटर। कितना है? 56 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? What would it cost to put a 4 round fence? उसको फेंसिंग करना है, फेंसिंग यानी कंपाउंड करना है। ओके, फेंसिंग वायर का। ओके, तो कितना है फेंसिंग में, यानी कितने राउंड लगाने हैं फेंसिंग के? 4 राउंड्स। ओके, वायर का कंपाउंड करते हैं ना, उस वजह से 4 राउंड लगाने। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक राउंड के लिए कितनी वायर लगेगी, इसका मतलब सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। राइट? तो सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद कितने राउंड लगाने हैं? 4 राउंड। तो सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय 4, वो उतनी वायर। ओके, एंड जितने मीटर वायर रहेगी उसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी हमें कॉस्ट मिलेगी। ओके, लेट अस सॉल्व इट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? सरकमफेरेंस। सो देयरफॉर सरकमफेरेंस of a circle, उसमें एडिशनल क्या दिया है उन्होंने? गार्डन है वो। ओके, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। वाई वी आर यूजिंग पाई आर? बिकॉज इन एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ रेडियस इज गिवन। ओके, इज इक्वल टू 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by, what is the value of radius given? It is 56 meter. Okay, ये यूनिट ध्यान में रखना है, मीटर। इज इक्वल टू, ओके, अब इधर उधर लेने की कुछ जरूरत नहीं है।
ओके, क्योंकि हमें सरकमफरेंस ही फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू, देखो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ओके, दोनों को मैंने 7 से डिवाइड किया। what I got, 2 multiplied by 22 means 44 multiplied by 8 meter is equal to how many meter? 8 4 जा 32, carry 3, 8 4 जा 32 plus 3, 35 meter, 352 meter, right? Then what we have to find out? Therefore, अब ये circumference मिला मतलब क्या है? Length of one round. ओके, तो यहां पर क्लियर करना चाहिए। सो देयरफॉर फॉर वन राउंड 352 मीटर फेंस इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। सो देयरफॉर फॉर 4 rounds, 4 rounds, how much fencing? 4 multiplied by 352 meter is equal to, so answer you will get 1408 meter wire is required. Okay, therefore cost of 4 rounds of fencing. Okay, अब ये तो लेंथ हो गई, वो वायर वगैरह जो कुछ भी है उसकी लेंथ हो गई। अब उसकी कॉस्ट निकालनी है हमें। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ फेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है? 1408 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द कॉस्ट गिवन इन एग्जांपल? इट इज 40 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट 40 रुपीज इज इक्वल टू, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 56,320। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ what would it cost to put a 4 round fence around this garden? Okay, the cost of 4 round fence will be rupees 56,320. Right? Okay, let us move to example number 4 now. Example number 4 is, the wheel of a bullock cart has a diameter of 1.4 meter. एक बुलक कार्ट का व्हील है, उसका डायमीटर 1.4 मीटर है। देन हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। बुलक कार्ट बैलगाड़ी, ओके, उसका जो व्हील होता है उसका डायमीटर 1.4 मीटर है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है, अगर वो बुलक कार्ट अगर 1.1 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करती है तो उस व्हील के कितने रोटेशंस होंगे? ओके, रोटेशन का मतलब एक रोटेशन यानी एक सरकमफरेंस। ओके, उतना डिस्टेंस कंप्लीट करता है। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल नाउ। सो solution, circumference of wheel, what is the formula? Wheel means what? Circle. Circumference of wheel is equal to pi d. Okay, क्योंकि डायमीटर की वैल्यू दी है ना, सो देयरफॉर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, क्या आंसर होता है? 4.4 मीटर। ओके, सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर। ओके, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, टोटल आंसर मिलेगा 1100 मीटर। करेक्ट। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने रोटेशंस हो जाएंगे? उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस टू ट्रैवल, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला है और किया है, ओके, उसको किससे डिवाइड करना है? सरकमफरेंस।
ओके, वो जो व्हील का सरकमफरेंस है उससे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 4.4। ओके, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए उसको क्या करते हैं, 1100 इस पर एक जीरो ऐड करते हैं और इसको 44 करते हैं। ओके, ये डिवीजन करने के बाद आप लोगों का हमें आंसर मिलता है 250 रोटेशंस, 250 रोटेशंस। ओके, so therefore final answer is the wheel completes 250 rotations to cover the distance of 1.1 kilometer. Okay, here our practice set solving gets over, practice set number 42 gets over. Okay, and first video also comes to an end. In the next video I will come with the point, the arc of the circle and central angle and measure of an arc, and practice set number 43. Okay, thank you.